इस बार हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स में 500 से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस में, फेसबुक और इंस्टा के मीम्स में, ट्विटर के ट्वीट्स में सिर्फ एक ही बात चल रही है और वो है कोरोना वायरस। इस वायरस के चलते हमने न जाने कितने फेक न्यूज पर यकीन कर लिया है। हम दिन भर न जाने कितने ब्लॉग्स, आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, यूट्यूब चैनल सर्व कर लेते हैं ये देखने के लिए कि हम कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, कैसे हम मेंटली फिट हों चूंकि लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड हो चुका है, कैसे हम होम रेमेडीज को यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर्स हमें जेन्युइनली जानना है। तो आपके ये जो क्वेश्चंस है उसका आंसर्स आपको मिलेंगे, बिकॉज सून आई विल बी टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ an Ayurvedic doctor, Dr. Sushma Khandelwal. She is from Indore. She is practicing Ayurveda since 15 years. She is a marathoner, cyclist, and she goes for trekking too. She is also a counselor, and she has given lectures in premier institutes on lifestyle in Ayurveda and how to live a disease-free and a stress-free lifestyle. So here I am with Dr. Sushma Khandelwal. Ma'am, thank you so much for joining us and talking to me. So how is your quarantine period going? Basically, it's a mixed kind of feeling. Like initially, I was very happy because I was like completely with my family and my kids and utilizing time with them. But like otherwise, my life was like looking patients also, going outside also, looking after kids also, family also. So it was a bit relaxed type. Initial 8-10 days, I was a bit relaxed, but as soon as gradually हमें दिखा कि इंदौर में काउंट बढ़ते जा रहा है कोविड पेशेंट्स का, तो थोड़ा स्ट्रेस हो गया. लाइक स्ट्रेस इन द सेंस कि क्यों फैल रहा है, इसको कैसे रोकें एंड कैसे ट्रीट करें और क्या हेल्प कर सकते हैं हम सोसाइटी को कि उनको कम से कम इन्फेक्शन हो, इसका हम सब बचें. तो इस तरफ थोड़ा सा एक बार ध्यान जा रहा था और क्या करना है उस पर थोड़ा सा चल रहा है मंथन. If I talk about Indore, so what is the current scenario of Indore? I mean, वो हॉटस्पॉट में आ गया है. या थोड़ा स्कैरी है भी अपनी कंडीशन. लाइक वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड थोड़ा ध्यान रखना रहेगा हमें. थोड़ा काउंट काफी बढ़ गया है इंदौर का और इसको कंट्रोल में लाने में थोड़ा सा समय लग सकता है हमें, बट 100% सब कंट्रोल में आ जाएगा. Do you think states should also include Ayurvedic treatment for coronavirus along with allopathic? Like Karnataka, Goa and all too. आपने मेरे दिल की बात कह दी. मतलब एक्चुअली पता है 3 states, Karnataka, Goa and Kerala, as you told, have included Ayurvedic treatment also with the allopathic protocol going on. But here in MP, in Indore, we started giving Kadha and Chyawanprash with the help of few people, like few dignitaries who believe in Ayurveda. But to treat like moderate to severe patients, we need some Ayurvedic medicines that should be given with antibiotics. I am really requesting these people to give me 10 patients who are moderately or severely ill because of corona, and I will treat them with our medicines and just see the results. But still they're waiting for the permission of state government and central government. Let's hope like we may get chance to treat because they are also saying that they are not having any treatment for this COVID. They are like HCQ and azithromycin, what they are giving to the patient is also a trial. They are giving and they are waiting for the results, what they come. It's not the short formula and short treatment of corona. So we should also give we should also be given the opportunity to treat them. And what about this hydroxychloroquine, this medicine? Actually, they are giving, but they are not 100% sure whether it will affect or not. It's a trial going on. Okay. Can we invent any medicine in Ayurveda for coronavirus? Can this happen? We have medicines, we have medicines. We can, you can use on patients, but हमें chance to मिले. Like I want to keep Ayurvedic medicines का involvement हो इसमें treatment में, because they are also trying ना HCQ और azithromycin जो वो दे रहे हैं, whatever medicines they are giving, वो भी trial है. So we have some medicines. ऐसा नहीं हमें कुछ invent नहीं करना होगा. We have medicines जो हम दें
और उससे रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं एंड जितनी भी चीजें इंटरनेट पे मेंशन की गई that we should spend our time with family and we should look at our old photos and watch web series and also I think we have done all that. अब जो एक दूसरी चीज आ रही है वो ये है कि ये लॉकडाउन की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो हाउ पीपल कैन बी हेल्दी मेंटली? एक्चुअली यू नो व्हाट, कोरोना से ज्यादा उसका डर हमें मार रहा है। ठीक है, ये बीमारी कोई नई नहीं है, ऐसे ऐसे ये बीमारियां ऐसे आती रहती है, ठीक है, लेकिन इनका डर ज्यादा मारता है। आप हार्ट से ज्यादा, हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। इफ यू सी ग्रीन जोन जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये सब केसेस बहुत आ रहे हैं। लोग डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं, लोग स्ट्रेस और वरीड हो रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही रात को। दिस इज गोइंग ऑन, सो लाइक व्हाट कैन वी डू, वो हमें थोड़ा सोचना होगा कि हमें डरना नहीं है इस बीमारी से, ठीक है, डरना नहीं है। दूसरी चीज, अगर हमें हो भी जाती है तो भी डरने की कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये सबको अफेक्ट नहीं कर रही, सबको मार नहीं देगी ये। जो जितना स्ट्रांग रहेगा इंटरनली और फिजिकली एक्सटर्नली, वो उससे बेहतर तरीके से लड़ पाएगा। अभी आपको पता है क्या इंक्लूड किया है कोरोना के पेशेंट्स के लिए? परसों से उनको 1 घंटे का योगा कराया जा रहा है, ठीक है, उनको म्यूजिक थेरेपी दी जा रही है, उनके साथ गाना गाया जा रहा है, हम होंगे कामयाब एक दिन, और उन्हें मोटिवेशनल टॉक्स देकर उनको फील गुड कराया जा रहा है। सो इट मीन्स कि ये इनका रोल बहुत है, सॉरी इनका रोल काफी है। अगर हम मेंटली खुश रहते हैं ना, तो अपने आप हम डिजीज को इजीली हरा सकते हैं। सो आई विल जस्ट सजेस्ट फ्यू थिंग्स कि आप प्रेजेंट टेंस में रहो। अभी आप जो हो, अभी आपको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो यू जस्ट गो टू द डॉक्टर, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड टेक ट्रीटमेंट। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो जस्ट बी हैप्पी एंड रिलैक्स, जो होगा देखी जाएगी, लोड नहीं लेना है। अगर आप अभी खुश हो, अभी आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो जस्ट बी हैप्पी। प्राणायाम एंड मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट इन मेकिंग आवरसेल्फ लाइक हमें बूस्ट करने के लिए, हमारा मेंटल और इनर लेवल, इनर पीस लाने के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम काफी हेल्प करता है। सो वन शुड डू डेली, वन शुड प्रैक्टिस डेली। इम्यूनिटी जो है वो सबसे बड़ा खेल है कोरोना वायरस में। आपकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लुक, अभी लाइक हमें इट्स नॉट लाइक मतलब 1 महीने की या 2 महीने की बात नहीं है, हमें पूरा साल लगना है कोविड से पूरा रिलीफ मिलने में, ट्रू स्पीकिंग। सो बेसिकली जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी वही यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। तो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम जिस आंख खोलते हैं उस वक्त से लेके हम सोते हैं तब तक का रोल है इम्यूनिटी का। आपको पता है ना, लाइक अगर हम स्टार्ट करें कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो फर्स्ट स्टेप विल बी गेट अप बिफोर सनराइज। 50% ऑफ इम्यूनिटी विल बी इंक्रीज इफ यू आर गेटिंग बिफोर सनराइज, बिकॉज हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बिल्कुल सन के हिसाब से चलती है। तो अगर हम उसके पहले उठते हैं तो हमारी इम्यूनिटी वैसे 50% रेज हो जाएगी। सेकेंडली, उठते साथ अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है ना, अभी पैनिक नहीं होना है क्योंकि अभी बहुत सी चीजें अवेलेबल नहीं है, लेकिन लॉकडाउन खुलेगा तो देयर विल बी थिंग्स जो थोड़ा इजियर हो जाएगा। तो नारियल तेल 2 चम्मच लिया, मुंह में उसको भरो उठते साथ, और मुंह में ऐसे गार्गल करो लाइक दिस, जब तक कि पूरा मुंह फुल नहीं हो जाए सलाइवा से। आपको लगे अब नहीं हिला सकता हूँ, अब थूकना पड़ेगा, उसको थूको। दिस इज हाउ योर ओरल कैविटी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। हम स्टार्ट इससे करें, क्योंकि जो भी ये वायरस है ये ट्रैवल 2 ही तरीके से कर रहा है, या तो नोज से या माउथ से, एंड वो थ्रोट में आता है, देन इट गोज इनसाइड आवर लंग्स। ओके, सो हम अगर ओरल कैविटी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो हम वैसी वायरस को काफी हद तक रोक सकते हैं अपने अंदर आने से। दूसरा, रात को से सोते वक्त 3 से 4 ड्रॉप नोज में काऊ घी डालें, तो उससे हमारी नेजल इम्यूनिटी बनेगी, तो वहां से वायरस ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा अंदर। तो ये 2 बोथ वेज है जिसको हम लाइक इम्यून बढ़ा सकते हैं। देन आप पानी पियो, 2 गिलास गर्म पानी पिए, और उसके बाद मोशन होकर जाने के बाद 1 घंटा अच्छा वाला विग्रेस वाला वर्कआउट, लाइक योगा, एक्सरसाइज, जो भी आप कर सकते हो घर में बैठ के, एंड 20 मिनट प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम से हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है, और जितना ऑक्सीजन जाएगा उतना हमारे अंदर वायरस बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकते हैं। अगर हम फुल ऑफ ऑक्सीजन है
हमें छू नहीं सकता है। अभी आपको पता है, अभी कोरोना का कई लोगों को होके चला गया होगा, पता नहीं चलेगा, एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे बिकॉज ऑफ देयर हाई इम्यूनिटी। ये उन्हीं को अटैक करेगा जिनकी इम्यूनिटी लो रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट? दिन भर वार्म वाटर पीजिए, एक काढ़ा बना सकते हैं हम घर पर जो बहुत इजीली बन सकता है, जिसमें हम गिलोय डाल सकते हैं, तुलसी, नीम, दालचीनी और हल्दी, अदरक, ठीक है, काली मिर्च, इन सबको बढ़िया पानी में उबाला और लाइक जब वो हाफ रिड्यूस हो जाए उसको छान कर उसमें गुड़ मिला सकते हैं और उसको लो, सुबह शाम 2 बार जरूर लो। येलो मिल्क की बात सभी कर रहे हैं, दूध में हल्दी डालकर रात को सोते वक्त पिए। गार्गल करें, गार्गल से हमारी बहुत इम्यूनिटी बढ़ती है। गार्गल में आप गर्म पानी में सेंधा नमक और हल्दी डालकर गार्गल करें, स्टीम लें और हेल्दी फूड लें, लाइट फूड लें। यस। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नेटबस के जो फॉलोअर्स हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनके रहेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो वेजिटेबल्स हम लोग लेकर आ रहे हैं तो उसको कैसे हम लोग सैनिटाइज करें, बिकॉज डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, वो एक कोविड का एक खतरा है। So is there any way to sanitize vegetables? या उसके लिए मैंने लाइक एक WHO का मैंने देखा what they are suggesting. So it's very easy, 1 cup vinegar and 4 cup of water. उसको आप एक बॉटल में ले सकते हैं एंड जस्ट स्प्रे ऑन वेजिटेबल्स। उससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं वेजिटेबल्स को। या फिर एक बकेट में पानी ले लिया एंड ऐड टू 20% ऑफ सोडा, जो हम खाने में मिलाते हैं ना, बेकिंग सोडा, वो भी डाल के हम वाटर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को सैनिटाइज कर सकते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स ऐसे जिनको आप सिंपल बॉइलिंग, मतलब गर्म पानी में डालोगे तो भी वो लाइक वायरल लोड उसका हट सकता है। तो देयर आर 3 वेज जिसमें हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को सैनिटाइज कर सकते हैं। कुछ लोग सोप वाटर से धो रहे हैं, प्लीज उसको सोप वाटर से नहीं धोना है वेजिटेबल्स को। Oh God, people are washing through soap water. Yeah, people are washing. Yeah, I heard they're washing like it's recommended not to wash hands like so many times with water, soap. So they are washing vegetables also. Please don't do this. Vinegar is the safest way. अगर vinegar नहीं हो तो सोडा से कर सकते हैं। What kind of vegetables people should take to increase their immunity? Actually, every vegetable is good. You should increase intake of अदरक बढ़ाना चाहिए हमारे इसमें। सारे स्पाइसेस अच्छे से लेने चाहिए, हल्दी, जीरा, धनिया, ये सब, इन सब का रोल है हमारी डाइजेशन में। थोड़ा सा कोशिश करें कि नॉर्मल सॉल्ट की बजाय अपना सेंधा नमक यूज करें। यूजुअली कर्ड, पनीर, छाछ, है ना, ये सब का इंटेक बढ़ाना चाहिए। फ्रूट्स अच्छे से खाओ, दम मिलने लग जाएंगे लॉकडाउन के बाद, इंदौर की हालत खराब है। तो फ्रूट, वेजिटेबल, सैलेड सब खाओ अच्छे से वॉश करके, सैनिटाइज करके। दैट विल इंक्रीज लाइक अल्कलाइन जितनी भी चीजें हैं, अल्कलाइन में आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड्स, दही, छाछ, पनीर एंड स्प्राउट्स। दीज आर लाइक अल्कलाइन फूड। जितना हमारी बॉडी में अल्कलाइन लेवल अच्छा रहेगा उतना हमें कम अफेक्ट करती है बीमारियां। एसिडिक माहौल में बीमारियां आती है। दैट्स टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, मैदा वाली जितनी चीजें हैं, ओके, एंड डीप फ्राइड and very spicy food. These all things should be avoided right now. These are acidic food. Now अगर हम सैनिटाइजर की बात करें तो मार्केट में अभी सैनिटाइजर की कमी है एंड फेक सैनिटाइजर्स भी मिल रहे हैं. So is there any way to make sanitizer at home? Yeah, you can make it at home, but things have to be brought from medical store. Those are open right now. So WHO only recommended how you can make it at home. So 1 liter of distilled water and 850 ml of ethyl alcohol and 50 ml of hydrogen peroxide and 20 ml of glycerol. These all things are easily available in medical stores. You can bring it at home and इनको सबको mix किया and the sanitizer is ready. We are using it. Yeah. And अब दूसरी बात ये कि कोरोना वायरस से ऐसा बोला जा रहा है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं and people who have diabetes are more susceptible to this. तो ऐसी और कौन सी डिजीजेस हैं जो ज्यादा ससेप्टेबल हैं कोरोना वायरस से एंड पीपल शुड स्टे सेफ एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस? हाउ कैन दे डू दैट? Like if we those people who are having low immunity, fine. Those people who are having a history of recurrent cough, cold, allergic rhinitis, sinusitis, those who are obese, those who are having diabetes, hypertension, as you told,
and heart patients, and those who are having autoimmune diseases. They should like keep special precaution. They should like avoid themselves being affected by virus. So they should follow the They're at high same risk. steps as you mentioned earlier, like doing gargles and Yeah, drinking hot water. yeah. They should regularly do this. Like जो healthy है वो भले ही थोड़ा सा लापरवाही बरत सकते हैं, लेकिन these people should take utmost care. They are Yeah. highly susceptible. And you have also given lectures regarding stress-free life, how to live a disease-free and stress-free life. So is there any tip that you want to give? या अभी मैं कोरोना स्पेशल तो कुछ जरूर बोलना चाहूंगी अपने सारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को, एंड माय पेशेंट्स एंड एवरीवन इन द सोसाइटी कि प्लीज आप लोग अभी अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे वो ई न्यूज़पेपर हो चाहे जो भी हो. कम से कम न्यूज देखें, कम से कम व्हाट्सएप पर कोरोना की जो डिटेल्स आती रहती है वो देखें, क्योंकि क्या हो रहा है हम इनको पढ़ पढ़ के हर चीज को फील करने लग जाते हैं और नेगेटिव मोड पे चले जाते हैं. ठीक है, सो लाइक जितनी जरूरत इंफॉर्मेशन है वो हमें हमारे तक जरूर पहुंचेगी. जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, जो हाइजीन को लेकर है, स्टेरिलाइजेशन को लेकर है, जो हमें सबको पता है, बच्चे को पता है, वो हमें अच्छे से फॉलो करना है. लॉकडाउन खुलेगा तब भी हमें वो सब प्रोटोकॉल्स थोड़े फॉलो करने रहेंगे. अभी एकदम से पूरा हम जैसे पहले इंदौर में घूमते थे वैसा नहीं घूम पाएंगे, अभी तो टाइम लगेगा. सो जस्ट फॉलो दोज प्रोटोकॉल्स. बहुत ज्यादा डाटा पे मत जाओ, बहुत ज्यादा इंदौर की कंडीशंस पे मत ध्यान दो, लेकिन हाँ थोड़ा सा अवेयर रहो, थोड़ा सा अलर्ट रहो. ऐसा नहीं कि बस लापरवाही कर रहे हैं, वो मत करो. दूसरा, प्रेजेंट टेंस में जियो, हैप्पी रहो, अपने आप को रिलैक्स रखो, प्रॉपर स्लीप लो 7 से 8 घंटे की, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, और अपने बिलीवर्स के साथ इस पलों को एंजॉय करो. ठीक है, और पॉजिटिव थिंकिंग रखो. नेगेटिव थॉट लाओ ही मत कि मुझे हो जाएगा या मेरे किसी को हो जाएगा तो कैसे रहेगा. डोंट वरी एट ऑल. जब होगा तब देखेंगे, अभी तो खुश रहो. होगा तो इलाज लेंगे. अच्छा, वी हैव अ गुड मेडिकल टीम. या एंड स्लीप से मुझे याद आया कि एक और चीज ये है कि ऐसा सुनने में आया कि एसी ऑन नहीं करना चाहिए जब आप सो रहे हो रात में, या कूलर नहीं ऑन करना चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस हो जाएगा. सो इज दैट ट्रू? नो, इट्स नॉट कि कोरोना वायरस हो जाएगा. इट्स कि कोरोना जो वायरस है वो ह्यूमिड प्लेसेस पे और कोल्ड टेम्परेचर पे जल्दी आके ठहरता है. Okay. इसलिए हमें अपना वातावरण गर्म ही रखना है. जितनी गर्मी रहेगी वायरस टिकेगा नहीं. तो हमें अपने बॉडी को भी वार्म रखना है, हमारे आसपास के वातावरण को भी वार्म रखना है, ताकि वायरस वहां आए तो टिके ही नहीं. इसलिए तो देखो आपको, जैसे हमने जो काढ़ा बनाने के लिए बोला है, गिलोय, नीम, तुलसी, इन सबका, दे आर बिट वार्मर थिंग्स. हमारे अंदर वार्म रहेगा, हम गार्गल करेंगे, हम स्टीम लेंगे, सब वार्म जा रहा है, तो वायरस ऐसे ही किल होगा. अब गर्मी बढ़ेगी तो वैसे भी इसका प्रकोप कम हो जाएगा. सो इज इट ट्रू कि गर्मी बढ़ेगी तो कम? एक्चुअली थोड़ा फर्क पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा. ओके. उसका भी टेम्परेचर ना, उतना टेम्परेचर पे वो टिक पाएगा. ओके. हाँ, इसलिए एसी और कूलर के लिए बोला है कि ऑन नहीं करें. हाँ, क्योंकि फिर नींद नहीं आती है इसलिए. So it gets very difficult to have that 7 to 8 hours sleep without AC and cooler. What you can do, 28 से 30 के बीच का टेम्परेचर आप रख सकते हो वेंटिलेशन के लिए, और लाइक एकदम गर्माहट नहीं उसके लिए. बाकी लाइक बहुत चिल नहीं करना है. Yeah. लोग 18 पे चलाते हैं ना, उनके लिए. Thank you so much, Dr. Sushma, for joining us. And it was a pleasure talking to you. I have gained a lot of knowledge from you. So thank you so much. I hope कि जितने भी हमारे viewers है वो अब थोड़े से काम हो जाएंगे कोरोना वायरस को लेके. And I think वो इतना भी harmful नहीं है जितना शायद लोग कह रहे हैं, right? Actually, yeah, it's not harming everyone. Yeah. So thank you so much, ma'am, for joining us. Thank you. Thank you to you too. Okay, dear. Bye. Bye.